निकालो, फॉरवर्ड निकालो खाली. So that will be trim of 2.9 into FF, that is 78 upon length 148. वो TF हो जाएगा, वो हाई ड्राफ्ट में trimmed by stern है तो माइनस कर दो, you'll get the draft forward. निकाल के देखो 7.291 आता है नहीं दोबारा से. Assuming that your answer was correct, I'll see as we start going through. Okay, इधर देखो जरा. Length ये particulars आ गए. Trim is 1.8 meters by stern. Light grounding takes place at the forward perpendicular. That is the first thing we ascertained. Then the slope of the seabed over one ship length is 2.9 meters. That is by virtue of sounding that we got. First, we have to find out our draft at the forward end. Why? Bracket में लिखा हुआ है. Because that is the first point of contact. अब अगली बार तो नहीं भूलोगे मेरे भाई इसको. बॉस लोगों अब तो नहीं बोलोगे इस चीज को. नहीं सर, नहीं सर, नहीं बोलेंगे. First to find our draft forward, which is why forward, because that is the first point of contact. अगर first point of contact aft होता तो हम ये draft aft निकालते, कोई और point होता तो हम वहां का draft निकालते. When, for which moment? When the vessel just sits, that means first time sits on the seabed overall. For that, we cannot avoid calculating P. So initial trim is 1.8 meters by stern. Trim when just sitting overall is 2.9 meters by stern. Trim change is 110 centimeters by stern. I don't think there should be any problem about this. Trim change is equal to P into FF upon MCTC. Why FF? Because that is the lever, trimming lever of P from center of flotation to forward end where P is acting. When we put these values, we get value of P as 372.3 tons. Correct, beta? Yes, sir, correct. Okay. Ab, our draft will be equal to initial draft forward minus mean rise because of this minus TF of the trim caused. अगर ये method लगाओगे तो TF will be the TF of the trim caused. And when you put these values, you get the draft forward as 7.034. एक बार देखो बेटा इसको दोबारा से. तो तुम कुछ और दे रहे थे मुझे, 7.291 दे रहे थे. क्या बात थी उसमें? या मैंने गलती की हुई है, मुझे नहीं पता. देख लो एक बार प्लीज, जस्ट चेक. हैव आई मेड एनी मिस्टेक? Or you guys made a mistake? Just check again, beta. Why were you getting? हाँ check करो जरा. If I am wrong, then I'll. Value तब 400 कुछ बोल रहे थे सर. तो आप P check करो क्यों आपका गलत आया बेटे. आपने ये जो है FF नहीं लिया होगा, ये AF लिया होगा जल्दी में. पक्की बात है 70 लिया होगा. Then you must have made this mistake. तो फिर बेटा वो तो ब्लंडर है ना. अच्छा है तुम उस दिन कह रहे थे फिजिकल क्लास होनी चाहिए. फिजिकल क्लास होती तो आज तुम मेरे से धुनाई होती तुम्हारी, बता रहा हूँ. थैंक यू स्टार्स, फिजिकल क्लास नहीं है. यस सर कह रहा है, उसके ऊपर भी करता है. हमने AF लिया था. अरे भाई टॉपिक खत्म होने वाला हो गया, अब गलतियां मत करो भाई. इज 7.304 करेक्ट? अभी चेक कर लो. तुम्हारा P गलत था बेटा. फिर हाँ जी, validated 7.304. Yes, sir. Okay. Yes, sir. While others are doing, can you also validate it through the other method? Initial high draft निकालो बेटा. Initial high draft निकालो. इससे पहले draft था 9.8, 10.8, 9.8 and 8 meters. So 1.8 meters पे correction निकाल दो. 1.8 into 70 upon 148 correction to the after draft. उसको 9.8 से माइनस करो. इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालो फटाफट बेटा.
8.948 ओके 8.948 या 9 जो भी है उसमें से अब माइनस करो मीन राइज. दिस मीन राइज इज 372.3 अपॉन 32. इसको बेटा सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके इसको मीन राइज को माइनस करो. गेट मी सो दिस विल गिव अस द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट व्हेन शिप सिट्स ओवरऑल फॉर द फर्स्ट टाइम. सो गिव मी द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट. 8.833 Okay, 8.833 beta is the hydrostatic. ये यहाँ तक समझ गए? This will be the hydrostatic draft when ship sits overall for the first time. हाँ जी And the trim. वापस सर से एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए सर. सॉरी बताओ क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर मीन ड्राफ्ट से जो इसको डिवाइड करेंगे तो सर सिट बाय ये तो एक मिनट नहीं तुम कहाँ पे जाके अटके हो? हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अभी? What are we trying to calculate now बेटा? ये जो पैरेलल मेथड निकाला था जो इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम? फॉरवर्ड ड्राफ्ट कैलकुलेट कर रहे थे ना अभी जो कैलकुलेशन चल रही थी. हाँ तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट तो अभी बीच में जो स्टेप था वो क्या था? वी वर ट्राइंग टू फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट व्हेन शी सिट्स ओवरऑल फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? ओके करेक्ट. ठीक है सर. ओके तो तुमने इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से मीन राइज माइनस कर दिया. मीन राइज तो हर ड्राफ्ट पे लगेगा ना बेटा? हाँ सर ठीक है. तो मीन राइज माइनस किया तो उसने क्या दिया तुम्हें? दैट गिव यू द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट व्हेन द शिप सिट्स ओवरऑल, यस और नो? मीन राइज से माइनस किया हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से मीन राइज माइनस किया तो दैट गिव्स यू द हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट व्हेन द शिप सिट्स ओवरऑल फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? ओके ऑलराइट यस सर ठीक है. एंड व्हाट इज आवर ट्रिम देन? 2.9 मीटर्स बाय स्टर्न. 9 मीटर्स बाय स्टर्न, यस सर. तो 2.9 का एफएफ निकाल लो, वो टीएफ निकाल लो. टीएफ 2.9 का कैसे निकालोगे? 2.9 into 78 is the distance from center of flotation upon 148. कितना आया टीएफ? टीएफ कितना आया? 1.528. 1.528. She is trimmed by stern. तो ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट ज्यादा होगा, फॉरवर्ड ड्राफ्ट कम होगा. तो जो ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आया है जो अभी कैलकुलेट किया था इसमें से ये टीएफ माइनस कर दो. दैट शुड गिव अस अगेन द सेम ड्राफ्ट ऑफ 7.304. सेम आ रहा है सर. करेक्ट. सो आई वाज जस्ट वांटिंग टू हाईलाइट कि कान कैसे भी पकड़ सकते हो जो तुम्हें स्ट्राइक कर जाए. देयर विल बी ओकेजन्स व्हेन द सेम थिंग कैन बी ऑब्टेन्ड इन मल्टीपल वेज. तो कल को किसी बुक में किसी और ढंग से देखो तो ये ना हो कि हमें तो क्या कराया था, ये क्या है. Have you understood both the methods? Yes sir. Okay. Now, having got this draft forward, when she sits overall for the first time, now we will proceed with part 1 and part 2. Now we come to part 1. Now part 1. Draft forward at light grounding is equal to the depth forward end, then that is 8 meters. Correct, beta? Yes sir. क्वेश्चन कहता है लेवल फॉल्स बाय 30 सेंटीमीटर्स. हम कोई तुक्काबाजी नहीं करेंगे. इट हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड. सो द ड्रॉप इन लेवल इज 30 सेंटीमीटर्स. सो द ड्राफ्ट फॉरवर्ड विल आल्सो रिड्यूस बाय 30 सेंटीमीटर्स. So draft forward after the tide fall of 30 centimeters would be equal to the depth at the forward end. Why? Because at the point of contact, after the contact is made, draft and depth vary together, correct? Yes, sir. Yes sir. So the draft at the forward end in part A would be 7.7 meters, right? Yes sir. What should be the draft forward for the vessel to sit overall first time? 7.304 we just calculated, right? Yes sir. So now is the stern still waterborne or is the vessel sitting overall? Now tell me. Still waterborne sir. So that means she is still not sitting overall, yes or no? Yes sir. So that is the first inference. Draft forward when vessel just sits on seabed overall was 7.304 which we computed. हमारा ड्राफ्ट फॉरवर्ड है अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है 7.7. इसका मतलब the vessel is in contact with the seabed only at singular point, that is forward perpendicular, and is not sitting overall on the seabed. Is this inference right, beta?
यस सर। करेक्ट। याद करो Correct, sir. क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें 4.8 5.8 वाला था, 1 मीटर लेवल फॉल करना था, उसमें जहाज क्रिटिकल पीरियड में था, तो उसके बाद कैसे सॉल्व किया था उस क्वेश्चन को? दैट इज व्हाट विल अप्लाई हियर नाउ। कैसे करोगे इसको आगे बताओ। बेटा आपने ऐसा ही क्वेश्चन 4.8 5.8 मीटर्स आफ्ट था, 1 मीटर लेवल फॉल हुआ था, वेसल क्रिटिकल पीरियड में था, एस्टेब्लिश करने के बाद देखो उस क्वेश्चन को एक बार, तो हमने कैसे सॉल्व किया था। ओनली थिंग वी नो राइट नाउ इज we don't know anything, we only know that forward draft has reduced by 30 centimeters, that's all you know, correct? सर वो डिक्रीज इन ड्राफ्ट वाला करेंगे सर? करेक्ट करेक्ट बेटा, वही लगेगा ना, बिकॉज दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड, दिस ओनली टेल्स यू, आपको ना पीछे का ड्राफ्ट पता, ना ट्रिम पता, ना कुछ पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि फॉरवर्ड ड्राफ्ट हैज रिड्यूस्ड बाय 30 सेंटीमीटर्स, दैट इज द ओनली इंफॉर्मेशन यू हैव, राइट? यस सर। And this reduction in draft will be on two accounts. One will be mean rise Yes. and other is the TF component of the trim caused because of this P, which is at 30 centimeters, after 30 centimeters fall of level, right? यस सर, वहां से पी निकाल लेंगे। Correct. We'll find P for part 1 then. So the change in draft forward is equal to fall in tide level, that is 30 centimeters, and change in draft forward is equal to mean rise plus TF. We know this mean rise is P upon TPC, and TF will be equal to TC into FF upon L. What is TC equal to? This is because of P. P into FF upon MCTC will be the trim. Let me change to pen here. This is what is the trim caused by P. Correct, beta? This is trim change. Right, guys? यस सर। यस सर, यहाँ से अब पी फाइंड कर लेंगे। अब क्या है, सिर्फ P मिसिंग है सारा और सब कुछ है, P निकालो बेटा फिर। That will be the P for part 1 of the question. प्लीज कैलकुलेट P, सारी वैल्यूज MCTC TPC सब कुछ आपके पास है, उन वैल्यूज को डाल दो, लेंथ वगैरह पता है, FF 78 है, सब वैल्यूज को डाल दो, एंड दैट गिव्स यू P of 160.5 टन्स। What did the question want us to find? एक मिनट में फोन पे देख लेता हूँ, कल भेजे थे ना क्वेश्चंस आपको। Where is the phone? Okay, what does it want us to calculate actually?
ये तुम्हारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 6th. He wants you to find the drafts after the tide falls. He doesn't want you to find GM. He wants you to find the drafts. Now, how can you find the drafts? बेटा ये तो बता दो. In part A. सर P आ गया हमारे पास, अब हम TA वाला फॉर्मूला लगा देंगे. TA of trim cos. तो trim cos कितनी है यहाँ पे? इस P को यहाँ वैल्यू को डाल के trim cos निकाल लोगे बेटा, पहले भी किया हुआ ऐसे. So the draft forward you already know is 7.7. वही हो जाएगा ना, P into AF upon P into FF बेटा. FF upon ये जो सर्कल क्या है बेटा यहाँ पे, दिस इज द ट्रिम फॉर्मूला ना बच्चे, ये वाला. हाँ जी सर, ऊपर वाला. ये जो सर्कल किया हुआ, दिस इज द ट्रिम फॉर्मूला. वहाँ P की वैल्यू डाल दो, ट्रिम मिल जाएगी, cos because of this P. हाँ जी सर. So TC is 0.474 meters by stern because of this P acting at the forward perpendicular by stern, of course. Is the calculation right? Just check. So now you can find out. अब ये बताओ, मैंने TC निकाल लिया, अब मुझे छोटे ढंग से बताओ, लंबे ढंग से मत बताओ, मुझे छोटे ढंग से मैं हाफ ड्राफ्ट कैसे निकाल सकता हूँ. फॉरवर्ड तो पता है ना 7.7 है. सर TC minus TA. TC minus TA क्या होगा वो बेटा? सर TA निकाल लेंगे ना सर, TC माइनस TF करके. नहीं वो तो निकाल लोगे, तो क्या करोगे फिर? चलो TA निकाल लिया, फिर क्या करोगे? और उस आप ड्राफ्ट में ऐड कर देंगे. बस ऐड करोगे और कुछ नहीं. मीन राइज माइनस कौन करेगा अगर इस ढंग से करोगे तो? हाँ सर मीन राइज भी माइनस करेंगे सर. तो फिर होगी ना गलती. ट्रिम निकाल लेंगे सर. ट्रिम छोटा डंग क्या है? इनिशियल ट्रिम तुम्हें पता है, ट्रिम कॉस्ट मिल गई है, तो उस पार्ट 1 के क्वेश्चन के एंड में ट्रिम क्या होगी, वो निकल जाएगी, रिजल्टेंट ट्रिम. यस सर. और फॉरवर्ड ड्राफ्ट में पता है, तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट में ट्रिम लगा दो ना. एक कल ऐसा क्वेश्चन किया तो था जिसे फॉरवर्ड ड्राफ्ट से सीधा हाफ ड्राफ्ट निकाल लिया था. Yesterday you remember somebody said sir इसको हम TF से भी TF से करेंगे, मैंने कहा उससे भी वही आंसर आएगा, yes or no? But we skipped that ना. ये तुम्हारा 16th या 17th क्वेश्चन था जिसमें फॉरवर्ड परपेंडिकुलर पे ग्राउंड हो रखा था शिप, याद है? MV विजय. यस सर, उसमें वो ट्रिम कोस ऐड कर दी थी, इनिशियल ट्रिम, मतलब रिजल्टेंट ट्रिम निकाली थी बेटा, ठीक है ना? राइट सर. रिजल्टेंट इनिशियल ट्रिम is 1.8 meters by stern. Trim when tide falls by 30 centimeters will be then 2.274 meters. ड्राफ्ट फॉरवर्ड आपको पता ही है, क्योंकि ग्राउंडिंग के बाद वो जितनी डेप्थ होगी उतना ही फॉरवर्ड ड्राफ्ट होगा. सो फॉरवर्ड ड्राफ्ट इज 7.700 meters. Aft draft will be 7.7 plus 2.274 and that will give you the draft aft. Let me know if you have any concerns. So the answer would be 7.700 and 9.974 meters. अब इसमें कोई भी ऐसी चीज बता दो बेटा जो हमारी एक्सरसाइज में कवर्ड नहीं थी, बट अगर उसको अप्लाई करने में हम अभी भी टेंटेटिव रहेंगे तो दैट मीन्स वी हैव ईदर नॉट सॉल्व दोज क्वेश्चंस. अगर क्लास में भी सॉल्व साथ करते लॉजिकली, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम सिर्फ बोर्ड से उतारते रहो चीज को यार. ओके, नाउ कैन यू हेल्प मी इन सॉल्विंग द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एट लीस्ट? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट को भूल जाओ, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज find the drafts forward and aft when level falls by 2 meters. अब सर हमें ट्रिम फाइनल तो पता ही है ऑलरेडी, क्योंकि 2 मीटर चला गया नीचे. नहीं एक मुझे फाइनल ट्रिम पहले 1 मिनट, सीधा फाइनल ट्रिम पे अटैक मार दिया, सीधा फाइनल ट्रिम पे अटैक मार दिया बेटे.
नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हमने पहले जो हमने दोनों के लिए जो कंबाइन पहले सॉल्व किया था, जिसमें हमारा ड्राफ्ट फॉरवर्ड 7.304 आया था, हाँ जी, उसके वो हमारा जब सिट ओवरऑल है, तो हाँ अब 2 मीटर टाइड फॉल हुआ है, हाँ तो ड्राफ्ट फॉरवर्ड 6 मीटर हो गया है, हाँ। तो मतलब 1.304 मीटर्स और नीचे गिर गया है, मतलब उसकी उसकी जरूरत ही नहीं 1.3 नहीं, मैं इसका एक इसका तो इसका इसका मतलब जहाज बैठा मेरे हुआ है, इसका हाँ, मतलब इसका जहाज। मतलब वही मैं तो कंफ्यूजन ये में पहले पड़ा, बोल, जहाज पूरा बैठा हुआ है। तू ये बोलना बेटा, तू सीधा टीए पर अटैक मत कर। अच्छा सर। फर्स्ट यू हैव टू ascertain whether she is sitting overall or not. हाँ जी सर, मतलब वही मैं बोल रहा था कि जो हमने कंबाइन सॉल्व किया हुआ है उसमें सिट हाँ वो सिट ओवरऑल नहीं, तू ऑलरेडी, तू तू बोल रहा होगा, पर किसको बोल रहा था मुझे नहीं पता। मे बी यू आर टॉकिंग मतलब टू योरसेल्फ। ठीक है, नहीं, कोई मतलब बात सी बात। नहीं। ठीक है, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, डोंट वरी, हाँ जी, डोंट वरी। तो अभी हमें Okay, ट्रिम okay, okay, कॉस्ट okay, हमारे पास आ okay. गया। Give me a minute. This gentleman is saying that he has ascertained that the ship in part two of the question is sitting completely on the seabed. Does everybody in the class agree, or any doubts on that? Yes, sir. She is sitting, no doubt. So that is first thing you will put down explicitly, beta. ये मत कहना मैंने देख लिया था, मैंने आंसर में नहीं डाला. If you miss out, you miss out. I am now showing this part which he's just said correctly, and I'll come back to you, beta, again to help me with the remaining part of the question. When the tide level falls by 2 meters, draft forward at light grounding was 8 meters. Fall in tide 2 meters. We know that one thing we can straight away know is draft forward will become 6 meters. Right, very good. And we had calculated before we attempted part one that the draft forward when the ship sits overall for the first time is 7.304. अभी ड्राफ्ट फॉरवर्ड 6 मीटर है, इसका मतलब जहाज ऑलरेडी बैठ चुका है. एग्रीड बेटा विद दिस इन्फ्रेंस? सो दिस हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड बेटा, यू कांट जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ओके 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 सर। ओके, नाउ यू टेल मी हाउ कैन आई गेट द ड्राफ्ट आफ्ट. और अगर तूने लंबा घुमा के रास्ता बताया ना, चाहे वो सही हो, फिर भी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं. बता. सर ट्रिम 2.9 है तो वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश. कान घुमा फिरा के मत पकड़ो. इफ शी इज सिटिंग ओवरऑल, उसके बाद उसकी ट्रिम 2.9 मीटर्स रहनी है. अगर ट्रिम 2.9 मीटर्स रहनी है और ड्राफ्ट फॉरवर्ड 6 मीटर है, तो घुमा फिरा के कान क्यों पकड़ना? पीछे का ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली 8.9 मीटर्स हो गया. यस और नो? डायरेक्ट 8.9, यस सर। Yes. Trim is equal to slope of the seabed 2.9 meters. Draft aft will be 8.9 meters. So answer to part 2 will be 6 meters and 8.900 meters. इसी में अगर P निकालना होता तो P वो वर्चुअल GM निकालना होता, KM दे देते तो वर्चुअल GM निकाल लेते. And this is how this question would have been attempted then. ये बेटा तुम्हारा पास पेपर का क्वेश्चन था, तो ये क्लियर हो गया तुम्हें. इसमें देखो कोई भी चीज नई नहीं थी. अगर तुम देखो, देयर वाज नथिंग न्यू दैट वी डिड, इट वाज ऑल व्हाट वाज ऑलरेडी डन. एक मिनट, डिस्कार्ड. ओके, देयर वाज नथिंग दैट you learned new from me today. Everything we used was already covered in some question or the other. It's only that we have to stick to the very basics. जो आपको फंडामेंटल्स आपको बार बार बोले जा रहे हैं, you'll have to remain stuck to them. If you abandon them, you will invite trouble someday or the other. So इसको बेटा बिल्कुल, is this question clear now? Yes, sir. Clear. क्लियर सर। I think I have solved one question from MV Hinship also. अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे MV विजय का था या नहीं था? ये भी पास पेपर्स का है, जनवरी 2018, अक्टूबर 2018. MV Hinship displacing 9500 tons and trimmed 0.8 meters by stern is to be dry docked for bottom inspection. KG and FSM are given. Find the GM fluid of the vessel before entering the dock. How will you find the first answer to the first question? Tell me. सर हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर से केएम की वैल्यू निकाल लेंगे सर.
minus kg minus FSC then GM fluid. और एफएससी के लिए और क्या निकालना पड़ेगा हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर से? डिस्प्लेसमेंट. Displacement. वेरी गुड, शाबाश. व्हाट इज इट? हाँ, नेचुरली एफएसएम को डिवाइड करेगा ना डिस्प्लेसमेंट से, जब तो एफएससी मिलेगा बेटा. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो दिया. ओके, माय मिस्टेक. डिस्प्लेसमेंट तो सब दिया हुआ है. My mistake. Displacement is given. You can find out draft also if it is required later on. Okay, fine. As far as part A is concerned, what he said was कि 9500 टन्स के लिए MV हिंशिप की स्टेबिलिटी बुकलेट से हम KMT की वैल्यू निकाल लेंगे. उस KM से KG माइनस करेंगे, GM सॉलिड आ जाएगा. GM सॉलिड से FSC माइनस करेंगे, विच विल बी FSM ऑफ 1600 टन मीटर डिवाइड बाय 9500 डिस्प्लेसमेंट. वो FSC माइनस करेंगे तो GM फ्लूइड होएगा, एंड दैट विल बी द आंसर टू पार्ट A ऑफ द क्वेश्चन. करेक्ट? दैट इज नथिंग टू डू विद ड्राई डॉकिंग. करेक्ट? Yes sir. Clear sir. Okay, very good. Yes, sir. Second is, he says the virtual GM of the ship when her keel takes to block all along the length. For which time does he want us to calculate part B? Critical instant, correct? Critical instant. Critical instant. Yes, sir. Yeah, the other way of putting the same question could have been find the virtual GM at critical instant, correct? Yes sir. Yes, How sir. will you do that? So we'll find the P. सर P निकालेंगे सर पहले करके. बस, फिर W minus P का KM निकालेंगे और P क्वेश्चन. हाँ जी सर, हो जाएगा. Correct, very good, shabash. Third, forward and aft drafts at which virtual GM of the ship will become zero. सर जो इनिशियल GM होगा सर जो हमारा, हाँ, वो जीरो होना चाहिए उस मोमेंट पे. सो इज इक्वल टू, उसको इक्वल टू में रख के फिर जो जीरो होगा वो किस वजह से होगा? एफएससी की वजह से होगा, और हमारा वर्चुअल लॉस ऑफ जीएम ड्राई डॉकिंग लॉस की वजह से. लेकिन बेटा, हाँ ठीक है, तो सही कह रहा है, तू गलत नहीं कह रहा है. व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट रॉन्ग, बट इस केस में क्योंकि आप पार्ट बी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हो बीच में, है ना बेटा? यस सर. तो पार्ट बी में अगर मेरा GM वर्चुअल GM पॉजिटिव आता है, so that means the ship the GM will become zero after the outside the critical period, correct? करेक्ट सर. नहीं सर, एक मिनट सर, कैसे सर? एक मिनट सर, जो GM अगर okay, we'll come to part 3 first later. Let me show you these two parts first. Okay, ये मैं हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स में गया, ठीक है, और मैंने ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स वहां से इंटरपोलेट कर लिया. फॉर 9500 टन्स draft is 4.869, TPC is given, MCTC is found out, LCF is found out, KM is found out. I don't think that should be a problem, right beta? Yes sir. Then part A, KM 8.983, KG 7.920, GM 1.063 solid minus FSC, and gives us the GM fluid of 0.895. Is that correct, beta? Yes sir, correct sir. Okay. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाद में खुद सॉल्व करके इसको टैली कर लेना प्लीज. Okay. Then we come to part 2 of the question. Find the virtual GM at critical instant. अब critical instant पे जो virtual GM निकालना था वो हमने पहले WP निकाला critical instant पे. Trim change will be 80 centimeters. MCTC, TPC, MCTC और AF अभी कैलकुलेट किया था उस टेबल में, उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो P at critical instant comes to 181.9 tons. ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हमने ये सारी वैल्यूज MCTC और LCF की निकाल ली थी. अब यहाँ पर हमने LCF लिखना शुरू कर दिया बिकॉज इन MV हिंशिप AF इज बीइंग रेफर्ड टू एज LCF. Is this up to P clear बेटा, या इसमें भी कोई डाउट है? Clear sir, clear. Clear sir. अब इस P के लिए W minus P के लिए KM निकालेंगे. We'll go to the stability booklet of MV Hinship and we'll find the KM. अब इस KM में से KG माइनस करेंगे, GM सॉलिड आ जाएगा. FSC माइनस करेंगे W minus P से डिवाइड करके, वो GM फ्लूइड आ जाएगा. फिर वर्चुअल लॉस लगाएंगे, वो हमारा वर्चुअल GM आ जाएगा. सो हियर इज द वर्किंग. KG माइनस किया, GM सॉलिड आ गया. FSC माइनस किया, GM फ्लूइड आ गया. उसके बाद वर्चुअल लॉस माइनस किया तो हमारा वर्चुअल GM, द आंसर इज 0.796 मीटर्स. करेक्ट बेटा? प्लस है, यस और नो? यस सर, प्लस में है सर. ओके.
सो जिसने भी मुझे कहा था कि पार्ट सी के लिए you were absolutely right. You have done that question based on question number 4, I think 6 of the MV Hinship, या question number 2 जहां desired trim was to be 0.3 meters. तुमने वो वाला सिस्टम लगाया, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसमें हमने FSC इसलिए लगाई थी बिकॉज वहां पर एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस वी हैड नॉट कैलकुलेटेड कि शिप क्रिटिकल पीरियड में है या बैठ चुका है. करेक्ट बेटा? इस क्वेश्चन में पार्ट 2 से एक चीज तो हो गई कि GM 0 होने से पहले शिप पूरा का पूरा बैठ चुका होगा. यस और नो? हाँ सर, उसके बाद तो वैसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ जी सर. उसके बाद तो FSC मतलब अगर उसके बाद 0 हो रहा है तो FSC will have no role to play. yes or no? हाँ सर, करेक्ट सर. FSC 0 so that means हाँ, तो you can always put a clause and say that as the virtual GM at critical instant is positive, the GM will become 0 after the vessel has gone outside the critical period. Therefore, the only account on which GM would be lost would be the virtual loss, as effect of FSC will be then not applicable. Correct, beta? Is that correct, what I said? वो वापस रिपीट करेंगे सर. मैंने ये कहा है बेटा कि as in part B, the virtual GM of the ship at critical instant is positive, that is plus 0.796 meters. Therefore, the GM would become 0 after the vessel has gone outside the critical period. That means post critical instant. Yes or no? Yes sir, correct. Right. Therefore, the GM would be lost only on account of virtual loss, as the loss of GM because of FSC shall not be applicable after the vessel has gone outside the critical period. Now, whatever I have said, is that making sense? Yes sir, now clear. Okay, fantastic. तो बस सब किसी ने क्लास में से पहली बार सही बोला था कि हम पहले KM निकालेंगे. किसके लिए KM? वो हमने टेबल में निकाल चुके थे 9500 टन के लिए. ठीक है, ये हमने KM था 8.983. इससे शिप की kg माइनस की, that became the GM solid. Now this GM is to be lost on account of these two things. अब उसके चक्कर में ये हमारा आ गया, दोनों के दोनों में कर दिया हमने. ठीक है, इसमें हमने FSC भी लूज की और इसमें हमने वर्चुअल लॉस भी किया. तो इस क्वेश्चन के there will be two different independent ways of handling this question. One way would be that you put a clause here, and say that my vessel is becoming, the GM is becoming 0 outside the critical period. Therefore, I am intentionally leaving out this loss. So please be careful about this question. Both answers would be equally right. There is absolutely no problem with the answers. अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे करके आंसर निकाल दोगे. दूसरा ढंग ये है कि अगर मैं सूटेबल वर्डिंग से क्लॉज करूं तो आई कैन लीव दिस आउट, एंड ऑब्वियसली इन बोथ द केसेस द आंसर्स वुड बी डिफरेंट, एंड आंसर्स वुड बी रीजनेबली डिफरेंट. ये आसपास भी नहीं होंगे, काफी डिफरेंस आ सकता है आंसर्स में, FSC इंक्लूड करके या ना करके. सो अगर आप ऐसे करोगे तो यू विल गेट द आंसर्स एज आई हैव सॉल्व्ड. अगर आप इसको बिल्कुल ही उड़ाना चाहो तो जो मैंने स्टेटमेंट्स अभी बोली थी वो वाली स्टेटमेंट्स आप डाल सकते हो. चॉइस रेस्ट एंटायरली विद यू ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इज दैट क्लियर बेटा? तो ये MMD के जैसे क्वेश्चंस की आंसर की होती है, जो भी मतलब टीचर्स को चेकर्स के पास जो होती होगी. बेटा ऐसा है कि पहली बात तो अब ये देखो, ये आंसर की किसने बनाई है, वो उसके मन में क्या चल रहा था. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू रियली से, राइट? ओके, बट व्हाट हैपेंस इज if answer does not match, अगर मेरा part 1 part 2 मीट मैच कर रहे हैं, थर्ड मैच नहीं कर रहा, तो in all fairness the process wants the evaluator to look up and see why the difference is coming. Correct?
and the moment he looks up and he sees your remark as to why you have left FSC and done it this way, you cannot without remarks leave out FSC. That I am again highlighting. अगर आपको FSC निकालनी है, छोड़नी है इसमें से, तो आपको क्लॉज करना पड़ेगा. अगर आप बिना क्लॉज किए FSC छोड़ दोगे, then yes you are leaving some things to doubt. So आपके पास दो चॉइस हैं. मैंने इस स्लाइड में ये FSC के साथ सॉल्व किया because I did not want to deviate from whatever we had been following for MV Vijay. So I have continued following the same process, and through that process P comes to 946.1. अगर तुम इसको उड़ा दोगे तो obviously value of P would change then. Can somebody calculate value of P without FSC? Without FSC इस वाले component को उड़ा दो, इस वाले को, फिर देखो P कितना आता है. How much is the P coming without FSC, beta? Can somebody calculate and give me? 1124.2. 1124 So बेटा ये इतना फर्क आ रहा है 1124, तो अबाउट 200 टन 150 टन का फर्क आ रहा है इसमें, 200 टन का. So that is the difference in P that is coming because of either including FSC or not including FSC. What am I again saying on record? If you do not clause, then please put FSC. If you want to clause and leave it out basis the earlier calculation, then that's also correct. That cannot be construed as wrong. Why I have raised the second issue? Second issue मैंने इसलिए रेज किया कि इससे पहले तुम्हारे मन में डाउट हो कि सर ने हमें कहा था कि क्रिटिकल पीरियड के बाद FSC अप्लाई नहीं होगा. So that's what I have told you. But अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड के इंडिपेंडेंट करूंगा तो मैं FSC लूंगा, और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड के साथ इसको लिंक करके करूंगा तो पर्सनली आई वुड बी टेम्प्टेड टू लीव FSC आउट विद सुटेबल रिमार्क्स हाईलाइटिंग द रीजंस फॉर लीविंग आउट FSC. सर इन केस हम FSC लूज भी करते हैं सर, हाँ, तो ये परमिसिबल GM लॉस भी चेंज होगा क्योंकि फिर हम वो GM लेंगे ना जब वो पूरा बैठ गया सर. नहीं बेटा, जब FSC तो या तो GM तो शुरू से ही ले रहे हैं ना. ये जो तुम्हारा 1.063 तो शुरू से ही आया ना बेटा. ये सर ये तो इनिशियल हो गया जब बैठा नहीं सर, जब FSC एक्ट कर रही है सर. नहीं, जब क्रिटिकल इंस्टेंट तक FSC लगी, ठीक है, वहां तक तो पॉजिटिव था, उसके बाद तो FSC लगनी बंद हो जाएगी ना. यस सर. तो फिर तो FSC मतलब FSC तो उसके बाद उससे पहले सब तरफ से हट जाएगी ना. एक बार बैठ गया उसके बाद तो FSC का कोई रोल नहीं है ना. दिस 1.063 विल बी प्योरली लॉस्ट ऑन वर्चुअल लॉस, ऑन अकाउंट ऑफ वर्चुअल लॉस देन, राइट? हाँ जी करेक्ट. तो इट्स अप टू यू. 1124 पॉइंट कुछ निकालोगे वो भी ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज एडिक्वेटली क्लॉज्ड एंड पुट डाउन, और 946.1 टन निकालोगे तो भी ठीक है. अब मैं तुम्हें यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं. अगर आप MV हिंशिप की सॉल्यूशंस देखोगे तो क्वेश्चन लाइक दिस, एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन, जिसमें हमने इनिशियल KM यूज किया है, क्योंकि हम बेटा आप याद करो हम बार बार क्या कहते आए हैं कि जब वर्चुअल GM निकालते हैं तो हमें KM कौन सा यूज करना चाहिए? W-P का, करेक्ट? यस सर. And here which KM have we used? We have used the KM for W and not W-P. और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर हमें एक्यूरेसी बढ़ानी हो तो हम आइट्रेशन कर सकते हैं एक स्टेप. यस और नो? मैं सिर्फ पार्ट C के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं. MV हिंशिप में अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो ये जो 946.1 या 1124 पॉइंट जो भी निकालोगे, it is basis the KM which is for 9500 tons and not W-P, correct beta? Is that okay? Are you getting what I'm saying? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बेटा. Have you understood what I said just now?
सर एमवी विजय में हम जो फाइनल केएम डब्ल्यू माइनस पी के लिए निकालते हैं सब एमवी और विजय में नहीं, एमवी विजय नहीं, सब में बेटा, सब सब में थियोरेटिकली जब हम वर्चुअल जीएम निकालते हैं तो केएम शुड बी टेकन फॉर डब्ल्यू माइनस पी। ये सर ओके, लेकिन जैसे अभी पार्ट सी क्वेश्चन था, अब ऐसा ही क्वेश्चन एमवी विजय में भी आया था, जहां पे कि हमारे पास पी की वैल्यू नहीं थी तो हमने केएम डब्ल्यू के लिए यूज किया। हाँ जी सर, करेक्ट। अगर डब्ल्यू का Correct. केएम यूज करोगे तो ऑब्वियसली उसमें इनएक्यूरेसी आएंगी। आएंगे सर, लेकिन वो उससे कम होंगी ना सर, मतलब नहीं डब्ल्यू माइनस पी के नहीं केएम, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा। दैट क्योंकि केएम डब्ल्यू माइनस पी का जो केएम होगा सर वो बेटा नहीं, ज्यादा होगा ना सर। नहीं बेटा, केएम हमेशा थोड़ी बढ़ता रहता है, कभी हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स में देखना, इट इंक्रीजेस एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग आल्सो बेटा, मेटा सेंटर स्टार्ट्स कमिंग हाँ, डाउन। वो ड्राफ्ट के साथ ड्राफ्ट जैसे करेक्ट कम होता है वो करेक्ट, केएम बढ़ता तो रहता है। वो डब्ल्यू माइनस पी और डब्ल्यू ड्राफ्ट को इम्पैक्ट करेंगे ना बेटा। हाँ सर, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा बढ़ता रहेगा, दैट इज नॉट करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, तो बेटा मैं आपको ये कह रहा था कि आइडियली when we have to calculate virtual GM, KM should be taken W minus P. Now W minus P के लिए KM लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन यहां पर हमारे पास P नहीं था, तो हमने P को कैलकुलेट करने के लिए KM जो यूज किया वो W का KM यूज किया, राइट बेटा, ये 1.063 निकालने के लिए। हाँ करेक्ट सर, ये वाला 1.063 निकालने के लिए हमने KM W का यूज किया, ना कि W माइनस P का। करेक्ट। ये सर, अब मैं 940, अगर टाइम ना हो तो तुम 946.1 से ही क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आइट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर एमवी हिंशिप की सॉल्यूशंस आप देखोगे तो ऐसी सिचुएशंस में, वो कैसी सिचुएशन में, जिसमें कि आपने KMW का यूज किया हो, दे हैव कैरिड आउट सिंगल आइट्रेशन। सिंगल आइट्रेशन मतलब ये जो P निकला, इसके बाद W माइनस P निकाला, वो जो KM आया उस KM से इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व किया टू इंप्रूव अपॉन द एक्यूरेसी। अच्छा ओके ओके सर, समझ गया, मतलब ये निकालेंगे, ये भी करेक्ट है, मतलब ऐसे बेटा करेक्ट और मींस विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स है, राइट। ओके ओके ओके, लेकिन एमवी हिंशिप में आइट्रेशन किया हुआ है, और जितनी बार आप आइट्रेशन करोगे, 1 2 3 4 5, जितनी बार आइट्रेशन करते जाओगे एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी। तो अब तुम ये कहोगे हमें आइट्रेशन करनी चाहिए, अगर टाइम हो तो सिंगल आइट्रेशन कर देना, टाइम ना हो तो बिना आइट्रेशन करके आ जाना। देयर इज नॉट मच टू लूज। अब मैं तुम्हें आइट्रेशन का इफेक्ट दिखाता हूं आगे। पहले तो ये P की वैल्यू से आइट्रेशन देखो, मैंने क्या किया, इसको P की वैल्यू आई, W माइनस P के लिए मैंने KM निकाला। देखो पहले KM कुछ और था W के लिए, अब KM चेंज हो गया 9.351। ठीक है, इसके बाद तुमने ये GM सॉलिड निकाल लिया, जो भी कुछ करना था फॉर वेस्टर्न टू। हाँ, अब ये मैंने आइट्रेशन किया, देखो पहले हमारा था 1.063 टू लूज। अब हाउ मच इज टू लूज, हाउ मच GM इज टू लूज नाउ इफ आई यूज दिस KM? 1.431 1.431. Earlier, without iteration, the GM to be lost was 1.063. Now, because of iteration, the GM to be lost is 1.431. इस 1.431 के लिए मैं नया P दोबारा से कैलकुलेट करूंगा, और वो नया P जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो उस P की वैल्यू, ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हुई हैं, डोंट वरी, P की वैल्यू which was 900 something in the previous case has now shot up to 1282.7 tons. P की वैल्यू बढ़ गई है। ओके, इसी का मैं और इफेक्ट आपको दिखाता हूं। मैंने 3 4 5 आइट्रेशन की हुई है। सेकेंड एक्यूरेसी के लिए आई यूज दिस P एंड आई कैलकुलेट द न्यू KM एंड कैरी आउट दिस कैलकुलेशन ऑल ओवर अगेन। जब इसको यूज करके मैं दोबारा से कैलकुलेट करता हूं तो now the GM to be lost is 1.598, and for which P becomes 1426.9. Each iteration is changing the value of P and taking me closer to more accurate answer. I have carried out one more iteration. आप इतने नहीं करोगे, ये सिर्फ मैंने iteration दिखाने के लिए तुम्हें किया है।
1426 का P यूज करके W माइनस P का KM लिया और फिर से यही आइट्रेशन की. नाउ द GM टू बी लॉस्ट इज 1.672 फॉर विच वैल्यू ऑफ P कम्स टू 1489.2. पता नहीं एक और किया है या नहीं, देख लेता हूं. हाँ, एक और किया हुआ है. उसको वही चीज रिपीट करके नाउ द वैल्यू ऑफ P कम्स टू 1517.5. और ये सारी मैंने अब टेबुलेट की हुई हैं. देखो रिजल्ट्स ऑफ सक्सेसिव आइट्रेशन. सबसे पहले आया 946.1 P की वैल्यू. दूसरे में वैल्यू आई 1282.7. तीसरे में वैल्यू आई 1426. चौथे में वैल्यू आई 1489. यू सी द डिफरेंस इज नैरोइंग डाउन बेटा. इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा था, इनके बीच में डिफरेंस रिलेटिवली कम हुआ, इनके बीच में डिफरेंस और भी कम हो गया. अब डिफरेंस कितना रह गया? करीब करीब 60-70 टन का. एक और अच्छा और नहीं किया था. तो यू सी व्हाट यू कैन सी इज द डिफरेंस इन P बिटवीन दीज टू वैल्यूज इज मच मोर कंपेयर टू दिस वन. And of all these, this one is the least. So what is this showing? That as the value of P, the difference in P is receding, we are getting closer and closer to more accurate value. This is the effect of iteration that I was trying to say when we were talking of MV Vijay also. कि iteration का मतलब ये है, अगर मैं 2-3 बार और iteration कर दूंगा तो ये डिफरेंस और भी कम होते चले जाएंगे and will be zeroing down on to the accurate value, near accurate value. इससे कुछ आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फर्स्ट आइट्रेशन तक समझ लो, उतना ही काफी है. नहीं सर, आ गया सर, आ गया. जैसे जैसे वो P की वैल्यू मतलब डिफरेंस कम होता जाएगा उतनी हम KM की एक्यूरेट वैल्यू या तो कोई कहे कि जैसे तुम कह रहे थे ये हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर यूज किया, ये KM यूज किया, वो KM यूज किया, तो अगर मेरा इंटरेस्ट ज्यादा एक्यूरेसी में है तो आई कैन एड्रेस दैट इशू थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन. ओके सर, ओके, समझ गया. ओके, सो बेटा ये जो थर्ड पार्ट था ये मैंने ये आइट्रेशन के लिए इसको यूज किया था समझाने के लिए. तो आप MV इनशिप भी देखोगे तो वहां सिंगल आइट्रेशन किया हुआ है ऐसे केसेस में. सो डोंट गेट बैफल्ड कि यार हमें तो आइट्रेशन पता ही नहीं था, ये दोबारा से क्या किया हमें तो. अगर तुम पहले स्टेप पे 941 पे भी खत्म करके आ जाओगे तो इट इज नॉट मच ऑफ अ लॉस. It is not much of a loss because dry docking में सबको पता है. In any case, this entire concept or school of thought that P is being virtually discharged from that point itself is something which has been evolved by observations, validated through experiments. So it is not something which is absolutely spot on. It is something which gives us reasonably good process of evaluating the stability of the ship in the dry dock, but may not be the one where you can say, nahi, 3 decimal place tak iski accuracy can be relied upon. No, not at all.